So we are discussing the extensor compartment of the forearm, and the first muscle, the lateral most, is brachioradialis. Rather, if you see if your forearm on the lateral side, you see a curvature like this. If you are exercising, वहाँ गए मेरे जिम के लोग, फ्रिश दिख रहा है. If you are exercising, then you can see this brachioradialis. Now I am going to talk about that the common extensor origin is from the lateral epicondyle, right? Their origin, their insertion, their nerve supply, their actions. So this brachioradialis muscle, its origin will be from common extensor origin. Okay? But if you have studied the humerus properly, you remember in the humerus in the lateral supracondylar ridge, there is origin of brachioradialis and in upper 2/3 brachioradialis, lower 1/3 extensor carpi radialis longus. So from the upper 2/3 of the lateral supracondylar ridge, this muscle will take origin. So like common extensor origin is lateral epicondyle, और उसके ऊपर से उसका दूसरा head. Characteristic of brachioradialis is that all these muscles, which we call as extensor compartment, they cause this action. Brachioradialis does not cause this action because it does not cross the wrist joint. There are 3 muscles amongst the 7 superficial and 5 deep. One is brachioradialis, another is supinator, and another is ankylosing. These 3 muscles will not cross the wrist joint. Brachioradialis gets inserted on the radius, on the lateral surface, radius lateral surface, lower part. Okay? उधर वो स्टूल पे बैठो. कुर्सी पे नहीं भाई, कुर्सी टीचर्स का हमारे. स्टूल कॉर्नर में ले लो. पहले 5 मिनट खड़ा रहे, फिर बैठे 5 मिनट के बाद. नोटबुक निकाल. रेडियस lateral surface, brachioradialis. Now nerve supply, most of these muscles are supplied by posterior interosseous nerve. Anterior interosseous nerve is a branch of medial nerve. Posterior interosseous nerve is a branch of radial nerve. Interosseous membrane के पीछे के बाजू होती है, therefore इसका नाम posterior. But some of these muscles some of these muscles are directly supplied by radial nerve. And brachioradialis is one of them. Radial nerve. Okay? हमने जब रेडियल नर्व पढ़ा था तो याद है आपको? रेडियल नर्व पढ़ा था. मैं हर साल एक स्टोरी सुनाता हूँ. मूवी था, उसमें राजेश खन्ना का सॉन्ग है, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा. सॉन्ग भी नहीं सुने, राजेश खन्ना मालूम है. तो वो क्या है ना, उसका गाड़ी ऐसा ही पलटी खाता है और वो सर को मार लगता है, और वो राजस्थान वाले हाथ ऊपर करो, राजस्थान के एक रिमोट विलेज में पहुंच जाता है. फिर वहाँ पे उसको महल दिखता है और उसको याद आता है, अरे यहाँ जब राजा बैठता था तो मैं इस महल में सिंगर था और मेरा प्रेम उस डांसर से था जो राजा के सामने नाच करती थी, वो हेमा मालिनी. तो उसको सब याद आने लगता है.
और फिर उसको गांव में हेमा मालिनी दिखती है, उसके सेकंड बर्थ। अभी राजेश खन्ना हेमा मालिनी को फिर बोलता है तुमको याद है तो फिर वो उसको लेके वो महल में लेके जाता है, तो यहाँ राजा साहब बैठते थे, यहाँ पे मैं बैठ के गाती थी, यहाँ पे तू नाचती थी, याद है? पिछले जन्म का बात कर रहे हैं। वैसे मैं जो बोलता हूँ रेडियल नाउ, हेमा मालिनी लोग थे, कौन से जन्म का बात कर रहे हैं? हम लोगों को भी याद ही नहीं ऐसा कुछ तुमने हमको सिखाया। Branches given before entering the radial groove, in the radial groove, after exit from the radial groove. After exiting from the radial groove, it supplies three muscles: brachialis, brachioradialis, and extensor carpi radialis longus. Before the radial groove, it supplies the medial and long head of triceps. In the radial groove, it supplies lateral and medial head of triceps. The nerve to medial also supplies anconeus. And after coming out of the radial groove, it supplies three muscles: brachialis, brachioradialis, and extensor. That's how brachialis has double nerve supply from radial nerve as well as musculoputamus. तो रेडियल nerve directly, और इसका जो एक्शन है ना, हम लोग इसका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, दिस कॉजेस फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट, एक्चुअली एल्बो जॉइंट को क्रॉस करता है। ओरिजिन ऊपर से है ना, ओरिजिन इज, और ये ब्रेकियोरेडियलिस जो है इसको खाली आप बाजू, दिस इज वन ऑफ द मसल व्हिच इज फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द क्यूबाटल फोसा, लैटरली ब्रेकियोरेडियलिस, मीडियली प्रोनेटर टेंस, और लैटरल मोस्ट स्ट्रक्चर इन द क्यूबाटल फोसा इज रेडियल नर्व, मीडियन ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स ब्रेका है रेडियल, और रेडियल नर्व जो है ना, रेडियल नर्व जो लैटरल मोस्ट स्ट्रक्चर है वो ब्रेकियोरेडियलिस के नीचे रहता है। अब हम ब्रेकियोरेडियलिस को ऐसा थोड़ा सा साइड में करेंगे, यू विल सी द रेडियल नर्व। सो उसका एक्शन इज मोर ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, ओके, एंड ब्रिंगिंग द आर्म टू मिड प्रोन पोजीशन, ब्रिंगिंग द आर्म टू मिड प्रोन पोजीशन, मतलब वो ये पोजीशन में लाता है आपको, मतलब नाइदर प्रोनेशन नाइदर मिड प्रोन पोजीशन। इसके लिए मिड प्रोन पोजीशन में आप अपना हाथ लोगे तो आपका ब्रेकियोरेडियलिस ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो जो लोग अपना बॉडी दिखाना चाहते हो जानबूझ के वो मिड प्रोन पोजीशन में लाते हैं, तो उसमें इनका ये मसल ब्रेकियोरेडियलिस भी अच्छे से दिखता है। Then second muscle is extensor carpi radialis longus. इसके भी दोनों सेम ओरिजिन से, खाली लोअर वन थर्ड, बराबर है ना, लोअर वन थर्ड ऑफ lateral supracondylar ridge and common extensor origin from the lateral epicondyle, from the lateral epicondyle. Okay. हमारे बुक खोल के बैठने वाले किधर है ना, रेडी है ना, चार्ट खोलो, ये चार्ट, ये चार्ट खोलो, दिख रहा है सामने। इसी के साथ होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, दिख रहा है बरोबर। इसका ओरिजिन रहेगा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन दैट इज लैटरल एपिकॉन्डाइल। ये दोनों को एडिशनल हेड से, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, पहले दो, इसको कुछ इंसर्शन जस्ट चेक करो बेटा कि एक्सटेंस, इसके ओरिजिन इंसर्शन आपके कोई पीछे नहीं पड़ने वाला है, फिर भी मैं जस्ट बता रहा हूँ। इसका है सेकेंड मेटाकार्पल और इसका है थर्ड, बरोबर। तो हमने जब फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसका इंसर्शन इज ऑन सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल, बरोबर। इसमें दो मसल्स है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एक ही मसल, यहाँ पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में दो मसल है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। तो याद रखेंगे कि फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस वाज गेटिंग इंसर्टेड ऑन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। ये दो अलग है, तो इसके लिए एक सेकंड पे एक थर्ड पे। ओरिजिन इंसर्शन इसका आपके कोई पीछे नहीं पड़ेगा, बट एंट्रेंस एग्जाम ये वो में ऐसा सब उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। राइट नाउ ये दोनों के नर्व सप्लाई में भी फर्क है।
एक का नर्व सप्लाई डायरेक्टली रेडियल नर्व से, बिकॉज रेडियल नर्व आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द रेडियल ग्रूव सप्लाइज थ्री मसल्स, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर, कार्पा रेडियलिस, लॉन्गिस। ये मैं बार बार बोलूंगा, बार बार। तो इसके लिए ब्रेविस का नर्व सप्लाई विल बी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, बरोबर। नाउ एक्शन, एक्शन, एक्शन जो है ये दो मसल्स का नाम में ही एक्शन है। ऑफ कोर्स दिस विल बी सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल, बट दिस विल बी पोस्टीरियर surface. Flexor carpi radialis also was second and third metacarpal, but it was on anterior surface. This is on posterior surface. दोनों का एक्शन विल बी एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, बरोबर, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट। और मैंने आपको बताया कि जब रेडियलिस, मसल के नाम में रेडियलिस है तो वो लैटरल साइड पे है, तो क्या करेगा उसके अलावा? एब्डक्शन, 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 एब्डक्शन ऑफ रिस्ट। लैटरल साइड पे है ना, तो एब्डक्ट करेगा। दैट मीन्स दोनों रेडियलिस में, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस में कॉमन क्या है? एब्डक्शन। कॉमन क्या है? एब्डक्शन। जब मसल के नाम में रेडियलिस है, वो फ्लेक्सर कार्पी हो, एक्सटेंसर कार्पी हो, एक तो एक्शन उसके नाम में छुपा हुआ है, फ्लेक्सर कार्पी फ्लेक्शन, एक्सटेंसर कार्पी एक्सटेंशन। दूसरा, जब नाम में रेडियलिस है तो एक एक्शन कॉमन है, क्या है? एब्डक्शन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मसल कौन सा, उसमें कौन सा दिया है? एक्सटेंसर, सुपरफिशियल, सुपरफिशियलिस है नहीं उसमें, एक्सटेंसर डिजिटोरम। तो जब हमने आगे का कंपार्टमेंट पढ़ा था तो उसमें हमारे पास सुपरफिशियलिस था, प्रोफंडस था। इसमें एक ही मसल है, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये जाके 4 डिजिट्स में स्प्लिट होगा और यहाँ पे अटैच होगा। कहाँ पे अटैच होगा? ये मसल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका ओरिजिन इज फ्रॉम द कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। हाँ, आप घर पे जाके आपके बुक्स में ये टेबल है, किसी किसी का अगर एडिशनल है तो उसमें आप वो ऐड करोगे। ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते यार सर वो आपने बोला ही नहीं, उस टाइप इधर तो टिप और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना, इसमें से ये बहुत सारे मसल्स ओरिजिन होते हैं और उनका एपोन्यूरोटिक ओरिजिन होता है। जस्ट आपको आइडिया देगा। इसका इंसर्शन ना, इसका इंसर्शन सपोज ये डिस्टल फैलिंग्स, ये मिडल फैलिंग्स, ये लोअर फैलिंग्स, तो ये यहाँ पे जाके ऐसा इंसर्ट होता है, यहाँ पे इंसर्ट होता है और यहाँ से एक ऐसा इंसर्शन, ऑल्दो इट इज ऑन द मिडल फैलिंग्स, वहां से वो डिस्टल फैलिंग्स पे भी जाता है इंसर्शन, बट मेनली व्हाट हैपेंस इज द इंसर्शन एक्सपांड्स, वो एक्सपांड होके डिस्टल फैलिंग्स पे जाता है और ऐसा एक्सपांड होता है। दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन। कुछ भी ड्रॉ करने से पहले, लिखने से पहले इसका ये समझो, ये डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशंस पे हमारे लंबरिकल्स, इंट्रोशिया सब इंसर्ट होते हैं।
ओके, तो इसको मैंने थोड़ा सा आपको ब्रॉड करके दिखाया. फिंगर के अंदर इतना बड़ा सा वो ब्रॉड नहीं दिखता, फिंगर में इतना ब्रॉड नहीं दिखेगा, मैंने जस्ट दिखाया. तो दैट मीन्स ये अगर यहाँ पे इंसर्ट हो रहे तो दे आर ऑल्सो इवेंचुअली गेटिंग इंसर्टेड ऑन विच फैलिंग्स, डिस्टल फैलिंग्स. ये मसल का एक्शन विल बी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट. इसका एक्शन विल बी एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट. हमारे पास फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में दो अलग अलग एक्शन थे. एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल वाज सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडिस, एंड एक्सटेंशन ऑफ डिस्टल इंटरफैलेंजियल वाज प्रोफंडिस. यहाँ पे ऐसा है कि ये एक्सटेंशन अगर करना है हमको तो हमारे पास बहुत सारे मसल्स, लम्ब्रिकल्स, सारे इंट्रोशिया है. बिकॉज ये अगर इस पे अटैच हो रहे हैं पोस्टीरियर, लम्ब्रिकल्स का और इंट्रोशिया का, बाय एनी चांस यू हैव ब्रॉट कनिंगहैम्स, कनिंगहैम्स करके डिसेक्टर, नहीं अभी नहीं, उसमें आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम दिखता है. यही डायग्राम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है. ये है मेटाकार्पल, सपोज दिस इज द मेटाकार्पल and this is one phalanx, second phalanx and third phalanx. This is posterior surface, this is anterior surface. हाथ ऐसा. Lumbricals they go like this. Okay? Sorry. They go like this. Lumbricals they go like this. Proximal to the metacarpopharyngeal joint and posterior to interpharyngeal. इसको फ्लेक्शन, इसको एक्सटेंशन. बट ये कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज दे ऑल गेट अटैच्ड हियर. तो इसमें से वो पुल करते हैं. इससे डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन. तो ये मसल ऑल्सो मिडल फैलिंग्स में जाता है, वो डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन जाके डिस्टल फैलिंग्स पे इंसर्ट होता है. उसका बहुत अच्छा डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. उसके एक्शंस में क्या क्या लिखा है? ब्रेस्ट, मेटाकार्पोफैलेंजियल एंड प्रॉक्सिमल या इंटरफैलेंजियल लिखा है. ठीक है, ठीक है. It causes actually कैसा? Because it helps other muscles to bring about extension at distal interphalangeal, like lumbricals and introsseous. Okay? आपका बुक खाली लिखता है extends the fingers of hands. This is very crude. ऐसा नहीं आप बोल सकते एग्जाम. जो मसल जो जॉइंट्स को क्रॉस करता है उसको ये सब का. इट विल एक्सटेंड द रिस्ट, इट विल एक्सटेंड द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, इट विल एक्सटेंड द प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल. आई कंफर्म दिस अगेन विथ यू वेदर इट हैज एक्शन ऑन डिस्टल फैलेंजियल डायरेक्टली, बिकॉज डिस्टल इंटरफैलेंजियल जो है ये उसको वो क्रॉस नहीं करता है, बट डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन के थ्रू. So there you can say that through the dorsal digital expansion via lumbricals and introsseous, definitely yes, अगर एग्जाम में आपको पूछा तो. Okay. Then extensor digiti minimi. ये खाली मैंने आपको बोला था शेंडे फल, उसको सब अलग से चाहिए. ये सबको है, मेरे को अलग से चाहिए. एक्सटेंसर पॉलिसी से अच्छा उसको बड़े वाले को दिया, मेरे को चाहिए. और ये एक्सक्लूसिवली खाली एक्सटेंशन ऑफ लिटिल फिंगर, ये हमारे लिए सुविधा की गई है. जब तो एक्सटेंसर डिजिटल और बाकी सब फिंगर का फ्लेक्शन इसको अकेले को एक्सटेंड. दैट इज नॉट द रीजन. इट एक्सटेंड्स द लिटिल फिंगर, ऐसे आप बोल सकते हैं. सो दिस इज एक्सटेंसर डिजिटी
minimum. Then extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris will take origin again from the common extensor origin. आप वापस देखोगे तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना एक ऐसा जगह है जहां से बहुत सारे लोग ओरिजिन लेते हैं. एंड देन its insertion will be on the fifth metacarpal. Fifth metacarpal. Okay. And the last amongst this superficial is anconeus. Anconeus. अभी anconeus जो है इसका ओरिजिन आपने अभी पढ़ा है जब ह्यूमरस पढ़ा था. कहाँ पे था? हाँ, लोअर एंड में पोस्टीरियर सरफेस, बरोबर वहां पे था. और उसका इंसर्शन इज अगेन ऑन द ओलेक्ट्रॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना. तो खाली इधर से इधर, इधर से इधर, और इसका एक्शन. सो इसका ओरिजिन इज फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस पोस्टीरियर सरफेस एंड इसका इंसर्शन इज ऑन ओलेक्ट्रॉन प्रोसेस. और उसका एक्शन एंकोनियस का नाम सप्लाई क्या है? हाँ, रेडियल नर्व वाया नर्व टू इन द ग्रूव इट गिव्स नर्व टू द. हाँ, आ जाओ. In the radial groove, it gives branch to the lateral head, it gives branch to the medial head, and now to medial head also supplies anconeus. Anconeus का action will be extension of elbow. Elbow. Extension of elbow. Okay? एकदम अच्छा नाम है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है anconeus. जो भी क्रिश्चियन फेथ के लोग हैं they can think of naming their child. लड़का होता है एंकोनियस, एंकोनियस डिसोजा, एंकोनियस. अच्छा नहीं? ओके, एंकोनियस. एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, व्हाट विल बी द एक्शन? योरसेल्फ, स्टैंड अप. चश्मे वाला, तेरे पीछे का चश्मे वाला जो मेरी तरफ ऐसा घूर घूर कर देख रहा है कि नहीं होगी. तू ही तू खड़ा है ना तुम. हाँ, अभी और डिस्क्रिप्शन क्या करो तुम्हारा? ग्रे कलर का शर्ट, उस पर इधर एक लेबल है. एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस का क्या एक्शन होगा? चलो, एनीबडी गेस? रेज योर हैंड. रेज योर हैंड एंड टेल. एक तो मैंने बोला था जब एक्सटेंसर लिखा है तो एक्सटेंसर ऑफ दिस, और जब अल्नारिस लिखा है तो अडक्शन. जब अल्नारिस लिखा है तो अडक्शन. सो इट विल हैव टू एक्शंस. एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट एंड अडक्शन ऑफ रिस्ट. तो दोनों अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, कॉमन थिंग क्या है दोनों में? अडक्शन. दोनों रेडियलिस में कॉमन थिंग क्या है? अबडक्शन. Okay, so you understood the actions of these muscles, because ये wrist joint पे काम करती है दोनों muscles. तो अब जो deep muscles है, deep muscles, उसमें से एक है supinator. Amongst the deep muscles, one is supinator. Okay. ये सुपाइनेटर अल्नार क्रेस, सुपाइनेटर क्रेस से ओरिजिन लेके रेडियस को तरफ जाएगा. अल्नार से ओरिजिन लेके ऐसे रेडियस की तरफ जाएगा. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सुपाइनेशन. सुपाइनेशन हैपेंस बाय द सुपाइनेटर मोस्टली इन द एक्सटेंडेड पोजीशन, व्हाइल बाइसेप्स इज अ स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर इन मिडिल एक्स पोजीशन. तो ये दो
अगर बाइसेप सुपाइनेटर है तो इधर अलग सुपाइनेटर क्यों दिया? बिकॉज बाइसेप्स इज अ स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर इन मिड फ्लेक्स पोजीशन, सुपाइनेटर इन एक्सटेंडेड पोजीशन डज अ बेटर जॉब. दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 मसल इसमें से पॉलिसिस है. पॉलिसिस 3, 4, 5. एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस. अरे इधर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट था, ब्रेविस था, बट वो ब्रेविस जो था ना फ्लेक्सर का वो यहाँ पे था. इधर पोस्टीरियरली छोटू मोटू मसल्स नहीं है हैंड में, इसके लिए इसका एक्सटेंसर जो है इधर से ही ओरिजिनल है. एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट. In the thenar eminence, the muscles we saw abductor pollicis brevis, opponens pollicis, flexor pollicis brevis and adductor pollicis. तो abductor pollicis brevis अगर इधर है तो longest ये compartment है. Okay, so we have one more muscle जिससे आप एक दूसरे को पॉइंट करते हुए खास बेकार मसल ये ना बहुत शान समझ वो स्टाइल मत वो ना वो उसके लिए एक्सटेंसर इंडाइसिस. एक्सटेंसर इंडाइसिस. ओके, most of them will take origin. आपका अरेंजमेंट होने के बाद मुझे बोलना. Most of them will take their origin from the posterior aspect of radius and ulna. नाम में ही इनका एक्शन है. एक्सटेंशन ऑफ द थंब, एक्सटेंशन ऑफ द थंब, एब्डक्शन ऑफ द थंब, एक्सटेंशन ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड supination. All of them will be supplied by posterior encroaches. All of them will be supplied by posterior encroaches. So I will stop here. Thank you.